مغل اعظم ہوٹل پہ ملک محمد عامر صاحب کا استقبال کیا جا رہا ہے، مغل اعظم ہوٹل لیاقت پور میں۔ ہیڈ ماسٹرز، سینئر ہیڈ ماسٹرز بوکے پیش کر رہے ہیں۔ ہار پہنائے گئے اور بوکے پیش کیے جا رہے ہیں۔ قبل ازیں سی او وزیر احمد آغا صاحب پہلے ہی پہنچ چکے ہیں وہاں پہ۔ مغل اعظم ہوٹل لیاقت پور۔ داخل ہوتے ہیں، تقریب کا اہتمام اندر کیا گیا ہے۔ سی او جناب وزیر احمد آغا صاحب اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر جناب ملک محمد عامر صاحب کے اعزاز میں تقریب منعقد کی جا رہی ہے۔ مغل اعظم ہوٹل کا اندرونی منظر، یہ لابی ہے، سامنے یہ کاؤنٹر ہے، وہاں پہ یہ حال ہے، یہاں پہ اہتمام کیا گیا ہے۔ ہیڈ ماسٹرز، سینئر ہیڈ ماسٹرز موجود ہیں۔ مغل اعظم ہوٹل کا خوبصورت حال، یہاں پہ ویلکم پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ سب سے پہلے محترم جناب وزیر احمد آغا صاحب، سی او ایجوکیشن عمران خان، سی او ڈی او صاحب کی خدمت میں خطبہ استقبالیہ پیش کیا جا رہا ہے۔ عامر صاحب، ڈی او سیکنڈری ضلع عمران خان کو لیاقت پور آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ سر تھینک یو ویری مچ، آپ لوگوں نے بڑی تکلیف کی۔ آج کی اس تقریب کا جو مختصر سی ہے باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوگا۔ میں دعوت دیتا ہوں جناب محمد عباس صاحب، ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول چک 42 سے۔ محمد عباس صاحب تلاوت کلام پاک سے باقاعدہ تقریب کا آغاز فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ میں محترم جناب محمد سلیم آصف صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہیں اور اپنے خیالات کے ساتھ۔ پرنسپل سلیم آصف صاحب کا نام فرمائیں گے، پرنسپل ماڈل ہائی اسکول لیاقت پور۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ انتہائی محترم جناب وزیر احمد آغا صاحب، آپ محمد
عامر صاحب اور تمام دوست احباب جو تشریف لائے ہیں ہیڈ ٹیچرس، میں آپ سب کو بالخصوص جناب سی ای او ایجوکیشن رحیم یار خان وزیر احمد آغا صاحب اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سیکنڈری ایجوکیشن جناب ملک محمد عامر صاحب کو آپ سب کی طرف سے، تحصیل لیاقت پور کے تمام ہیڈز کی طرف سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ویلکم کرتا ہوں اور رحیم یار خان میں پوسٹنگ پر مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ اور انشاءاللہ سر، جس طرح میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ ہم سب آپ کے دست و بازو ہیں، انشاءاللہ ہر جگہ پہ، ہر معاملے پہ آپ ہمیں اپنے ساتھ پائیں گے، اور اسی طرح ہم بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ آپ کے ساتھ پائیں گے اور آپ ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ اور جو ہیڈ ٹیچرز کے مسائل ہیں، جو ان کی مشکلات ہیں، یقینی طور پر جس طرح بھی آپ کے ساتھ آفس میں بھی ڈسکس ہو رہا تھا اور آپ کی بہت اچھی بات لگی کہ یہ کھلی کچہری ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہوں گی، تو امید ہے انشاءاللہ کہ بھی آپ ان سب دوستوں کے جو مسائل ہیں، جو مشکلات ہیں، ان کو بھی دیکھیں گے۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ سب دوستوں کا بھی بیحد مشکور ہوں کہ آپ سب تو تشریف لائے، اور جناب ڈی او صاحب اور سی او صاحب اور ان کے ساتھ آنے والے تمام مہمانوں کا بھی شکر گزار ہوں اور ان کو ویلکم کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ سلیم آصف صاحب موضوع مہمانوں کو ویلکم کر رہے تھے۔ ریکویسٹ کروں گا جناب طارق جمیل صاحب پرنسپل گورنمنٹ ہائی اسکول الہ آباد سے وہ اپنی خیالات کے ساتھ۔ بسم اللہ۔ پرنسپل طارق جمیل صاحب خطاب فرمائیں گے۔ سب سے پہلے میں محترم جناب وزیر احمد آغا صاحب، چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی رحیم یار خان، اور ملک محمد عامر صاحب ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سیکنڈری ایجوکیشن رحیم یار خان، ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ اپنے ہوم ڈسٹرکٹ میں اپنی تعیناتی اور پھر ہم دوستوں کے لیے فخر بن کر آئے۔ میں اپنے تمام دوستوں کی طرف سے ان کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جیسے سر سلیم آصف صاحب نے فرمایا کہ جی ہیڈز کی طرف سے جو ہے ہر قسم کا تعاون لیاقت پور تحصیل کے ہیڈز کی طرف سے انشاءاللہ جاری رہے گا، اور ہم آپ کے دست و بازو ہیں۔ ہم آپ کے جتنے بھی احکامات ہیں انشاءاللہ ان پر عمل کریں گے، اور اس ڈسٹرکٹ کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے آپ کی کاوشوں میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں گے۔ میں تمام ہیڈز کو جو ہے تشریف لانے پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سر کے ساتھ جو مہمان آئے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔ طارق جمیل صاحب خطاب میں فرمائیں گے۔ ریکویسٹ کروں گا چودھری محمد ریاض صاحب پرنسپل گورنمنٹ مہاجر کالونی ہائی اسکول کی اپنی خیالات کے ساتھ۔ پرنسپل محمد ریاض صاحب خطاب فرمائیں گے۔ جناب ملک عامر صاحب ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سیکنڈری، ساتھ آنے والے مہمانان گرامی اور سب سے پہلے میں، جیسے میرے دو کلیگس نے کہا کہ ہمارا تعاون حاضر ہوگا ہر کام کے لیے جو محکمہ ایجوکیشن میں ڈسٹرکٹ رحیم یار خان میں پازیٹیو چینج لے کے آئے۔ میری بھی کوشش ہوگی کہ ہم اپنے اتھارٹیز کے دست و بازو بنیں، اور جو اسائنمنٹ ہمارے ذمہ لگے ہم اس کو خوش اسلوبی سے پورا کریں، اور ہم یہ توقع بھی رکھیں گے کہ ہمارے آفیسرز ہمارے اپنے ہیں اور ہم بھی انہی کے ہیں۔ ہم ان سے تعاون چاہیں گے کہ یہ ہمیں جو ڈاک ہے اس تک ذرا مختصر رکھیں گے، مختصر ڈاک ہمیں جو ہے وہ دیں گے، اور ہمارا بھرپور تعاون ان کے ساتھ ہوگا کہ جو بھی اسائنمنٹ ہوگی وہ بھی کر کے دیں گے، اور جو پڑھائی کے لحاظ سے جو ہم سے ہو سکتا ہوگا محکمے میں، محکمہ ڈپارٹمنٹ ایجوکیشن میں، تحصیل لیاقت پور کے حوالے سے جو پازیٹیو چینج ہم لا سکیں، ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اس میں بہتری لا سکیں۔
मैं अपने आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, लियाकतपुर में इनको वेलकम कहता हूँ और बाकी जो स्टाफ जो बाकी कोलीग्स बैठे हैं उनकी तरफ से भी आने वाले मेहमानों को जी आया को कहता हूँ। बहुत शुक्रिया। मैं रिक्वेस्ट करूँगा जनाब मोहतरम मलिक मोहम्मद आमिर साहब, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी, की अपने ख्यालात करें। मलिक मोहम्मद आमिर साहब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर खिताब फरमाएंगे। मैं सबसे पहले आप सब साथियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने अपने इन साथियों के एजाज़ में पुरवकार तकरीब का अहतमाम किया। लियाकतपुर की धरती मैं समझता हूँ कि बड़ी फर्टाइल धरती है। इसका नाम नवाबज़ादा लियाकत अली खां से है, जो एक वफा और सखावत की अलामत है। तो जो वस्फ उस नाम में पिन्हा हो तो वो वही उसके जो बाशिंदे होते हैं उसके तर्जमान हो। वज़ीर आगा साहब आपकी तहसील लियाकतपुर के फर्जंद हैं। खानपुर में इनकी शादी हुई, रहीम यार खां में इनका घर है और सादकाबाद वाले इनसे मोहब्बत करती है। तो यूँ ये पूरे ज़िले का बेटा है। आपका जो मैं एक अलमिया समझा हूँ कि आप मरकज़ से 100 किलोमीटर दूर। मेरा ताल्लुक़ कानपुर से है, लेकिन मैं लियाकतपुर डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा हामी हूँ। वो इसलिए कि आप बहावलपुर से भी 100 किलोमीटर हैं और रहीम यार खां से भी, तो वो फिजिबल जो बनता है प्रोजेक्ट कि आपको यहाँ पे ग्राउंड रियलिटीज़ मिलती है। अनफॉर्चुनेट जो हम प्राइमर्स पे स्टडी करें, एलिमेंट्री विंग को करें, इवन दैट सेकेंडरी विंग या हमारे चौलिस्तान के स्कूल हैं, वो एफिशिएंसी लेवल हमें लियाकतपुर से नहीं मिलता। ये मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उसकी एक वजह आपका मरकज़ से दूर होना है। लेकिन ये जो चेहरे बैठे हैं ये देखें कि दे पीपल आर ग्रेट और ये एक्सपर्ट्स हैं अपने अपने फील्ड में, और इनका कंट्रीब्यूशन जो है हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हाई लेवल का हो। अब आगा साहब का मिजाज भी आप समझ गए, मेरा भी समझ गया। हमने आपको लियाकतपुर से रहीम यार खां आने की कोफ्त से बचा लिया। कोई मीटिंग अब रहीम यार खां आपकी नहीं होगी। मीटिंग सिर्फ उस वक्त होगी जब हमें कोई इम्पोर्टेंट एजेंडा हो। आज सिर्फ 6 स्कूलों की मीटिंग थी, आपका प्रोग्राम भी था, मैंने वैसे आना था, लेकिन हम चल कर आए 6 हेड्स की। इसी तरह आगा साहब का भी एक मिजाज है कि मीटिंग से ज़्यादा हम प्रैक्टिकली कुछ करें। तो इनका विजन बड़ा स्ट्रॉन्ग है कि एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए टीचर हमारा कंट्रीब्यूशन जो है वो क्या होना चाहिए। उस विजन में आप हमारा साथ दें, इंशाअल्लाह ये डिस्ट्रिक्ट हम बहुत आगे ले जाएंगे। आप सबको बहुत मलिक मोहम्मद आमिर साहब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर खिताब फरमा रहे थे। अब मैं दावत दूँगा आज की तकरीब के मेहमान एजाज़ जनाब तारिक लतीफ़ साहब के अपने प्रिंसिपल तारिक लतीफ़ साहब खिताब फरमाएंगे। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी, मेहमान ग्रामी, इन अहबाब में कोई ऐसा चेहरा तो नहीं है कि जिनके साथ मेरा कोई माजी में कोई रिलेशन हो। शकील बुखारी साहब से अलबत्ता मेरी मुलाकात हुई है, खुशी हुई, बहाना बन गया दोस्तों के साथ एक मुलाकात का। एजुकेशन डिपार्टमेंट से मेरी जो लास्ट असाइनमेंट थी वो थी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश की। बतौर लिटिगेशन ऑफिसर मैंने आलमोस्ट कोई 10 साल काम किया सीईओ ऑफिस में। आगा साहब का आज हुक्म था कि आज पंजाब सर्विस ट्राइब्यूनल में पेशी है
इस मौका पर आप मेरे साथ चलें। हमेशा शफ़क़त देते हैं, मोहब्बत फरमाते हैं। तो रिटायरमेंट के बाद मैंने कोर्ट ज्वाइन कर ली और इस वक्त मैं क्रिमिनल लॉ और सर्विस के मैटर्स जो हैं वो कर रहा हूँ। तो आप अहबाब के हवाले से भी मुझे खुशी होगी, किसी का कोई भी सर्विस के हवाले से इशू होगा वो उसके लिए मैं मतलब अपनी सर्विसेज जो हैं वो देने के लिए तैयार हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि एक ही वक्त में आप लोगों को मलिक आमिर साहब और वज़ीर आगा साहब की शक्ल में जो कम्बिनेशन मिला है, मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग से कम नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अच्छे तरीके के साथ अपने एजुकेशन के जो मामलात हैं उन्हें ड्राइव भी करेंगे और आप लोगों के साथ एक मुकम्मल हार्मनी के साथ इस ज़िला को मॉडल बनाने की कोशिश करेंगे। आप सबकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तारिक लतीफ़ साहब खिताब फरमा रहे हैं। मैं अपनी इस धरती के अजीम सपूत और अजीम एजुकेशनिस्ट जनाब वज़ीर अहमद आगा साहब CEO एजुकेशन ज़िला रंगार खान को दावत देता हूँ कि अपने ख्यालात के साथ CEO वज़ीर अहमद आगा साहब इस्तकबाल से खिताब फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो नहीं समझ रहा था कि ये कोई फॉर्मल सेशन है, हम तो खाने पे आए थे। तो इब्तदा है रब कायनात के बाबरकत नाम से, जो रहमान है, जो रहीम है और पूरी दुनिया का पालनहार है, और दरूद नबी आखिर ज़मां पर जो पूरी कायनात के लिए रहमत लिल आलमीन। मैं आप लोगों का शुक्रिया इसलिए अदा नहीं करूँगा क्योंकि लंबा सफ़र तय करने के बाद मैं अपने घर में आया हूँ, और जब घर से दूर कोई बंदा वापस घर में आ जाए तो घर वाले उसकी ऐसी पजीराई करते हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। मैं सोच रहा था कि इसमें लेट क्यों हो गया, तो दोस्तों ने इज़हार ख्याल किया कि आप हमारे साथ ताउन करेंगे। आप मेरे साथ ताउन ना करें, अपने आप के साथ ताउन करें, इसलिए कि CEO पूरा लियाकतपुर है। वज़ीर आगा यहाँ पे CEO नहीं खड़ा, CEO आप जितने बैठे हैं आप CEO हैं। तो आप आकर मैंने मलिक साहब से यही कहा कि अगर आपने बहुत ज़्यादा ज़रूरी मीटिंग भी करनी है तो एटलीस्ट तहसील लियाकतपुर को हेडक्वार्टर पे नहीं है, इसलिए कि वो मेरी तहसील है। मैं खुद जाकर आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जब कोई अहम असाइनमेंट होगी तो हम खुद आपके पास आगे रहता है। तो ये जो रिवायती फ़िक्रे होते हैं कि आप लोगों ने हमारे एजाज़ में पार्टी की और उसका शुक्रिया बनता है, तो उसके लिए मैं आप सबको शुक्रिया अदा करता हूँ। जहाँ तक असाइनमेंट की बात है, डाक की बात है, तो ये भी हमारा प्रॉमिस है, मलिक साहब का भी और मेरा भी, कि हमारी तरफ से कोई ऐसा लेटर नहीं आएगा जो सिर्फ ज़िले की असाइनमेंट। हाँ, अलबत्ता अगर सेक्रेटरी एजुकेशन की तरफ से, लाहौर की तरफ से कोई डाक मांगते हैं तो उसके लिए हम आपसे यही तवक्को रखेंगे कि वो आप बर वक्त देंगे हमें। इस वक्त मुझे आए हुए 22 दिन हुए हैं और 22 दिन में मेरी 7 एक्सप्लेनेशन हो चुकी है, 7 एक्सप्लेनेशन डेंगी। अब देखिए, आप हेड तशरीफ़ फरमा है, आपके पास सिर्फ एक स्कूल है, DO साहब के पास 329 स्कूल हैं, और मेरे पास मुझे जो जवाबदेही करनी पड़ती है वो 2776 हैं। कभी हम 2775 कहते हैं और कभी 2777 स्कूल कहते हैं। तो मुझे उसकी जवाबदेही जवाबदेह हूँ और मुझे उसका जवाब देना होता है। एक गारमेंट पे हमारी एक्सप्लेनेशन होती है और बदकिस्मती से कल जो है 8 गारमेंट। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अल्लाह ने ये एजाज़ बख्शा कि इसी धरती का एक फर्जंद आज ज़िले में बैठा है, तो फिर आप लोगों का ये फ़र्ज बनता है कि तीनों तहसीलों को से ज़्यादा आप विजिलेंट हैं। इसलिए कि जब बात होती है कि वज़ीर आगा का ताल्लुक़ कहाँ से है, तो सब कहते हैं लियाकतपुर से है। तो एक फितरी सी बात है, अगर हमें अपने ज़िले से प्यार होता है, अपने इलाके से प्यार होता है, तो अपनी तहसील से पहले प्यार है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट ये होगी कि एक स्कूल है आप लोगों के पास, उसको आप अपडेट होना चाहिए। मैं रियाज साहब से गुजारिश कर रहा था कि एक हेड आसानी से इतनी
होम वर्क जो है बच्चों का चेक कर सकता है, नोट बुक्स। तो इन्होंने कहा कि जनाब सुबह भी हम स्कूल पहुंचते हैं तो आप लोगों की तरफ से मैसेज आया होता है, ये ड्राप कर दें, ये प्रोफार्मा फिल कर दें, तो हम 10 कर सकते हैं। तो फिर मेरी रिक्वेस्ट पे इन्होंने एग्री किया कि हर है 25 डेली 25 नोट बुक्स मंगवा कर चेक करेंगे, और जब डीओ और सीओ आएंगे तो उन्हीं 25 में से हम देखेंगे, क्योंकि बदकिस्मती से जब से टिक मार्क आया बच्चा हमसे छिन गया, नो फेल का कंसेप्ट आ गया, तो उससे ये हुआ कि हमारे टीचर की परफॉर्मेंस जो है वो भी नीचे हो गई। अभी 6वीं 7वीं 8वीं में बच्चा आता है सही तरीके से ABC नहीं लिख सकता, उस्ताद ने होमवर्क देना छोड़ दिया है, क्लास वर्क देना छोड़ दिया है। बट मैं ये तवक्को रखता हूँ कि हमारे हेड टीचर कम अज़ कम एक पीरियड ज़रूर दें, और बच्चों की ये जो तालीमी पसमानगी है इसको दूर करने में यकीनन आप अपना हिस्सा डालेंगे। और आखिर में मैं यही कहूँगा कि यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। वंस अगेन थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत। CEO वज़ीर अहमद आगा साहब सवाल से खिताब फरमा रहे थे। वार्षिक परफॉर्मेंस सिलसिला तो खत्म है सर। मुग़ल आज़म होटल लियाकतपुर में CEO साहब और DEO साहब के एजाज़ में तकरीब का एहतमाम किया गया है। तहसील बार के सीनियर हेड मास्टर्स प्रिंसिपल्स शरीक हैं। मुग़ल आज़म होटल लियाकतपुर के खूबसूरत हाल में तकरीब का एहतमाम किया गया है। टीचर्स के काम तैयारी करेंगे, हर तहसील में जाएंगे ताकि टीचर्स के जो काम है मौके पे थोड़ा सा डिफरेंस तो नज़र आए ना कि अगर। और आज हमने देखा कि हम 1 बजे से आए बैठे हैं, मैंने कहा ये डिफरेंस भी हम तहसील लियाकतपुर वालों को बावर करा दें कि जी वो अफसर आ रहे हैं, अफसर उठ रहे हैं, अफसर बैठ रहे हैं। तो मैंने कहा हम 2 घंटे पहले जाएंगे और लियाकतपुर वाले हमें इंतज़ार कराएंगे, हमें खुशी होगी। मैं बार बार सलीम आसिफ साहब से कह रहा था कि चले, उन्होंने कहा नहीं जी अभी हमारे बंदे नहीं पहुँचे। मैंने कहा यार कितने आए हुए हैं, उनसे गपशप होगी। तो उन्होंने कहा बाकी सारे CO 3-3 घंटे हमें इंतज़ार कराते रहे, आप लोग आज 2 घंटे बैठे, हम नहीं बैठे। अब हम जो टाइम देंगे हम इंतज़ार करेंगे, इसलिए कि CO का मुग़ल आज़म होटल लियाकतपुर का थोड़ा सा आपको इस हाल का और होटल का व्यू दिखाते हैं। हाल को खूबसूरती से सजाया गया है। मेहरबानी की मेरे साथ चले, जब ने रिक्वेस्ट की मैं उसमें तनख्वाह मेरी जो है ओपन कर दी। मुग़ल आज़म होटल लियाकतपुर में तकरीब का एहतमाम किया जाए। थोड़ा सा व्यू दिखा रहे हैं आपको, खूबसूरत हाल। मुग़ल आज़म होटल रेस्टोरेंट या मैरिज हॉल का आपको बैरूनी मंजर दिखाते हैं। ये सामने वेलकम गेट है जहाँ जिसको आप समझ लें पत्थरों या चट्टानों की एक शेप दी गई है
اور اس کے اوپر جو ہے وہ رکھا گیا ہے اس طرح سے. سامنے سے یہ ویو ہے مغل اعظم ہوٹل کا. بہت ہی خوبصورتی سے جمالیاتی ذوق کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ہوٹل بنایا گیا ہے، تعمیر کیا گیا ہے. تمام خوبصورت پہلو. سامنے مارکی اور ہوٹل ہے اور اس طرف ریسٹورنٹ اور میرج ہال ہے. چھوٹی سی مسجد بھی سامنے موجود ہے. پاکستان کا پرچم لہرا رہا ہے. یہ پارکنگ ایریا ہے. سامنے مغل اعظم مارکی اور ہوٹل ہے. سامنے گیٹ بھی نظر آ رہا ہے. یہ خوبصورت لان ہے، بیٹھنے کے لیے سٹنگ پلان خوبصورت ہے. فوارہ بھی بنایا گیا ہے یہ. اور یہ بہت ہی بہترین خوبصورت جگہ ہے بیٹھنے کے لیے. چھتری نما جگہ، چھوٹی سی ہٹ بھی بنائی گئی ہے یہاں پہ، جھونپڑی نما. اور یہ کھانا پکانے کی جگہ ہے. یہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے جی یہاں پہ. اب اندر کھانا لگ گیا ہے. نیکسٹ ویڈیو تک ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ. گروپ فوٹو ہے جی. ہاں، سی او صاحب ڈی او صاحب کے ساتھ گروپ فوٹو. تمام لیاقت پور کے اور ضلع سے آئے ہوئے دوست یہاں پہ تشریف فرمائے. سی او صاحب ڈی او صاحب کے ساتھ گروپ فوٹو. ہیڈ ماسٹر، سینئر ہیڈ ماسٹر، پرنسپل صاحبان یہاں موجود ہیں. Okay, sir, everybody. Thank you very much, sir.